Hello everyone, this is CS Priyanka. I warmly welcome you all to my platform, Debit Guru. Hope you all are really doing great and getting prepared for your respective syllabus, whether you are appearing for IFCO or Power Grid or NTPC, etc. and etc. There are n number of PSU exams opportunities available for you daily. If I get any vacancy, I post the same in my Telegram channel. Hopefully, everyone who is watching this video has subscribed to that channel actually. So today, this session is regarding uh, a more detailed disclosure of the syllabus IFCO accounts trainee. Actually, I filed an RTI, but for the same, I received the reply today. What they said that IFCO is a multi-state cooperative society. This is needless to mention. I have already uh, told you erstwhile. So what they said that as it is outside the ambit of RTI, they have forwarded the same to the IFCO's MD, and what I believe that it will actually take much of our time, and probably your exams may be conducted in the month of June or May end as expected. We'll be discussing about this later. So, I had a conversation today with one of our ex student who is currently working in IFCO, who is currently working as an uh, supervisor accountant in IFCO. So, he has given me certain information which I'll be giving you today, how to prepare and what else should you prepare for getting for giving this exam and getting this exam cleared. So let's begin with it. See, I have already posted this whole syllabus in my Telegram channel. You can visit Telegram channel. The link I will share in the description box. And secondly, you can see this. This is our website. Go under blog option. Okay. This is the updated syllabus which I have given you. This is an indicative list of the syllabus. Today we will discuss more about what is relevant for your exams so that you can crack it very easily. And I cannot give the whole disclosure because some things are confidential, so I cannot give that. But yes, vacancies are quite more, so you don't need to worry about that. That student told me कि costing plus GST important है. CA इंटर लेवल के सीए इंटर लेवल के कॉस्टिंग और जीएसटी इम्पोर्टेंट है क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेबिलिटी उसने मुझे यही बताया कि या तो आपकी हेड ऑफिस में पोस्टिंग होगी या फिर कहीं प्लांट अलग अलग जहाँ पर है इसकी इफको की वहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है. तो उसने यही मुझे बताया कि कॉस्टिंग और जीएसटी जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करना. अकाउंट्स में नॉर्मल जैसे अपने अकाउंट्स हैं ये सारी चीज़ें बेसिक्स वगैरह इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए. वहाँ पर अभी तक इफ़को के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आई है, बट स्टिल इन इंटरव्यू इन इंटरव्यू they can ask you about the name, number, applicability. You should know about this. So ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी आपके इंटरव्यू पर्पस के लिए. बट अभी एट प्रेजेंट ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होती है, आप मेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो आप क्या कर लो, उसको पढ़ लो एक बार. उससे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं.
फाइनेंशियल रेशियो से क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं, पीएल बैलेंस शीट, पार्टनरशिप अकाउंट्स और कंपनी शेयर्स, ये सारी चीजों से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मैं और वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दूंगी कॉस्टिंग का, क्योंकि इंटर लेवल की कॉस्टिंग और थोड़ी ज्यादा होती है। तो स्टैंडर्ड और मार्जिनल कॉस्टिंग तो आपको करनी है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, बजटरी कंट्रोल एंड एनालिसिस, ये वाले आपको करनी है। कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स के नेम, नंबर ऑफ एप्लीकेबिलिटी, नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं, आप देख सकते हो डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म पे जाकर के। इसके अलावा आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस, जॉब, बाय प्रोडक्ट, एक्सेट्रास जो आपके इंटर लेवल पे थे, वो सारी चीजें जैसे कॉस्ट शीट्स हो गई, आपको सारी की सारी एमसीक्यूज टेस्ट सीरीज फॉर्म में आपको मिल जाएगी डेबिट गुरु प्लेटफॉर्म पर। हमने एक इफ्को के लिए अलग से एक टेस्ट सीरीज निकाली है, यू कैन गेट दैट ऑन आवर प्लेटफॉर्म। और अगर कोई पावर ग्रिड प्लस इफ्को प्लस एनटीपीसी का दे रहे हैं एग्जाम तीनों का, तो यू कैन हैव, इसकी भी एक टेस्ट सीरीज है प्रॉपर। और अगर आप और भी बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो तो आप हमारे मास्टर कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस, जॉब, बाई प्रोडक्ट, एक्सेट्रा, जो कॉस्ट शीट्स वगैरह, ये सारी चीजों से भी आपको क्वेश्चन करा जा सकता है, बिकॉज कॉस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस एग्जाम पर्टिकुलरली। ओके, नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उस स्टूडेंट ने मुझे ये बताया है, उसको भी अपने टीम मेंबर्स लोगों से पता चली है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट एज मच एज दैट इम्पोर्टेंट। तो जितने मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, इट्स बेटर आप वही सारी चीजें करके जाओ, दैट इज मोर देन इनफ। इन लॉ बेसिक जो आपका, आप सीपीटी से लेकर के अपनी इंटर तक जितनी आपने लॉ पढ़ी है, उससे आपको क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। नेगोशिएबल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनीज एक्ट से बेसिक आपको क्वेश्चन पूछेंगे। किस किस थीम क्या होनी होगी क्वेश्चन की, सेक्शन नंबर, फॉर्म्स, डेज, बस इन सारी चीजों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो लोग, फॉर्म नंबर, ठीक है। तो दीज चैप्टर बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, अकाउंट्स, ऑडिटर, डायरेक्टर्स की ये लिमिट बेस्ड सारी चीजें पढ़नी है आपको, डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर में। और ये कोड ऑफ, और इसके साथ में और एक चीज आप लिख लो, आर्टिकल्स होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन सा आर्टिकल क्या मतलब क्या बोलता है, वो सारी चीजें आपको क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। मैं एक काम करूंगी, मैं एक शीट दे दूंगी आपको, एक समराइज, आई प्रोवाइड यू द समराइज शीट फॉर दिस, ठीक है। उसके बाद जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आपको जीएसटी के हम लोग अभी और वीडियोस वगैरह भी प्रोवाइड कराएंगे, बाकी नोट्स वगैरह जो हैं आपको मिल जाएंगे। और ये जो हम और एमसीक्यूज जो हैं आपके लिए चैप्टर वाइज जो है वो और अपलोड कर रहे हैं, उतने दिन में आप ये सारी चीजें आप पढ़ो। जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जीएसटी इतनी कोई हाई लेवल नहीं है, यहाँ पर भी सेम चीजें हैं, फॉर्म नंबर्स, डेज, सेक्शन, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई, रिटर्न्स वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर में जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आपको याद रखना है, रीसेंट अगर कोई अमेंडमेंट है जीएसटी की तो वो भी आपको करके जानी है। टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, बेसिक्स ऑफ जीएसटी जो है, इसकी इंट्रोडक्शन, इंसेप्शन कैसे हुई, गवर्निंग अथॉरिटीज कौन कौन है, टाइप्स क्या है, कितने टाइप ऑफ जीएसटी है, किसकी हाईएस्ट और लोएस्ट रेट है आज की डेट पे, और एचएसएन कोड का फुल फॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। इनकम टैक्स में भी बहुत ही बेसिक लेवल, यानी डिडक्शन आप ले लो, डिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, डिडक्शन से क्वेश्चंस करे जा सकते हैं बेसिकली, सेक्शन नंबर,
और कितना परसेंटेज डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। अलाउड, डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, ये सारी चीजें आपको करे जा सकते हैं, ठीक है। ये वाला आपको करना ही है। उसके बाद सैलरी एंड डिडक्शन मैंने बोल दिया। फॉर्म्स एंड रिटर्न से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, टीडीएस, टीसीएस एंड एडवांस टैक्स, ठीक है। उसके बाद आप ऑडिट में आइए, आपको नंबर, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग्स के नंबर और नेम, ये आपको पता होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के नंबर और नेम, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला था वैसे ही वो जो सर थे जो ऑलरेडी एज एन सुपरवाइजर अकाउंटेंट वहां पर काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी मुझे बताया, मिस्टर सक्सेना नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे बताया था ये सारी चीजें जो कि आपके कोर्स के लिए रेलिवेंट हैं, जो आपसे पूछी जा सकती है। नाउ अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल, व्हाट ही सेड दैट आपको एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। एप्टीट्यूड से ऐसे क्वेश्चंस करे जाएंगे जो कि बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे आपको, आपके मतलब हम लोग जिस हिसाब से टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं वो कह रहे थे कि वो और भी हाई लेवल है, उससे भी बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। एप्टीट्यूड के अंदर आ गया आपका रीजनिंग और क्वांट। अच्छा, क्वांट में आप क्या क्या कर सकते हो? क्वांट में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन, सेकंड जस्ट अ सेकंड, डेटा इंटरप्रिटेशन, और भी जो चैप्टर्स हैं, रेशियोज, ये सारे चैप्टर्स आप कर सकते हो। बाकी सब जो क्यूब्स वगैरह है वो सारी चीजें छोड़ देना। अगर आप वेल एंड फाइन हो तो उस चीज में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन डू दैट। बट अगर आप थोड़े से वीक हो मैथ्स में मेरी तरह, तो आप कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो जो कि हर एग्जाम्स के लिए मैं बोलती हूँ, वही सारी चीजें आप करना। बाकी जो डिटेल है, आई विल अपडेट दैट ऑन वेबसाइट। आपने वेबसाइट देख लिया है, debitgurus.com, वहां जाकर के आपको ब्लॉग सेक्शन में देखना है, ठीक है। रही बात एप्टीट्यूड की, तो ये, और मैंने पूछा था कि करंट अफेयर से क्वेश्चंस करे जा सकते हैं क्या, तो व्हाट ही सेड दैट करंट अफेयर से करंट क्वेश्चंस नहीं करे जाएंगे, यू विल बी आस्क्ड फ्रॉम द स्टैटिक पार्ट, यानी आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस के स्टैटिक पार्ट करने हैं। ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू डू। बाकी सारी चीजें जो एक्स्ट्रा मुझे कॉस्टिंग में लगेगी वो मैं सारी डाल दूंगी। और जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर में मैंने ऑलरेडी जो मैंने बताया वो वही उन्होंने भी रेफर वही किया है। तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आपका 150 मार्क्स का टेस्ट होने वाला है तो 100 शैल बी आस्क्ड फ्रॉम टेक्निकल पोर्शन एंड 50 शैल बी आस्क्ड फ्रॉम नॉन टेक। हम सिलेबस का वेट नहीं करते हैं क्योंकि क्या पता सिलेबस आएगी भी या नहीं आएगी, इसकी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए आप इसके अकॉर्डिंगली ही प्रिपेयर करिए। इफ्को को इंडियस एप्लीकेबल नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट स्टिल दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इन योर इंटरव्यू लेवल। जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे या फिर आपसे एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। तो अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर मेरे मेरे लाइक परव्यू में रहा तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर यू, एंड इफ आई डोंट नो द आंसर आई विल फॉरवर्ड द सेम to the respective person who is currently working there, so he'll answer you the same. So I guess आप लोग सभी को, जो लोग टेंशन में थे कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल करना है। टेक्निकल के अंदर में इन समरी मैं फिर से बता दे रही हूँ, कॉस्ट प्लस जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। नॉन टेक्निकल में क्वांट, रीजनिंग, जीके, जीके दैट इज ऑल्सो फ्रॉम फाइनेंशियल अवेयरनेस,
ये सारी चीज़ें आपसे पूछे जा सकती हैं। तो अगर देखा जाए, अगर 150 मार्क्स के रहेंगे तो 100 मार्क्स वुड बी आस्क्ड फ्रॉम टेक्निकल एंड 50 फ्रॉम नॉन टेक्निकल। अच्छा, यहाँ पर मैंने लॉ में आपका इस जो टेलीग्राम वाली चीज़ें हैं, ये जो शीट है ये मैंने टेलीग्राम पे दे रखी है। मैंने लॉ में यहाँ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 नहीं डाल रखा है इस लिस्ट के अंदर में, बट मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे डाल रखी है वो चीज़। तो इसके अंदर जो मैंने एक शीट प्रोवाइड कराई है आप लोगों को नोट्स की, I have provided a sheet of notes in Telegram channel. You can refer that. एंड और भी मुझे लगेगा जो वो मैं और प्रोवाइड करा दूंगी, बट लॉ से आई डोंट थिंक सो इतने डिटेल में क्वेश्चन करे जाएंगे जितना मैंने प्रोवाइड कराया है। आई गेस वो अच्छा है, प्रिसाइज है बहुत। तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए, और बाकी एक्स्ट्रा जो मुझे और भी, मैं पूरे एक्ट को अच्छे से एनालिसिस कर रही हूँ, अगर मुझे लगता है कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो डेफिनेटली आई विल गिव यू द जिस्ट ऑफ दैट, और एमसीक्यूज वगैरह भी प्रोवाइड करवा दूंगी। अ, तो आप लोग क्या है, आप लोग अपने प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम पे उसका प्रेशर नहीं रहे। और प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, कहीं से भी प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिए। So I guess this is all clear to you all. So thank you so much. This was all about today's session. And if you face any difficulty, you can post your comment in the comment box. I'll be posting the description of my website link in the description box. You can visit my website. I'll update the full syllabus as discussed today there, and you can refer that website for future correspondence also. So, thank you guys. Take care and all the best.